Hi there, warm welcome. You're watching BluePrint Exclusive with me, Meghna Deka. Well, first up, we are going to get you an exclusive ground report at a time when panic has gripped the residents of Joshimath town in Uttarakhand. With an increase in landslides, hundreds of houses have reported cracks. In fact, you can see the visuals from the spot which shows several of the houses with very dangerous cracks have now developed. The local administration has started evacuating people from the affected areas and started moving them to safer locations. The district administration has now decided to halt the work on the National Thermal Power Corporation's hydropower project as well to try and salvage the situation. Construction work on the bypass road between Hilang and Marwadi for Badrinath has also been stopped. Now, the work on one of Asia's longest rope ways in Oli has also been halted after this massive scare of Joshimath sinking. Chief Minister Pushkar Singh Dhami will be visiting the spot tomorrow. He will be holding a high-level meeting on the issue as well to chart the way forward. सभी लोगों के साथ इस पर एक गहन समीक्षा की रखी हुई है। हमारे आपदा प्रबंधन सचिव और हमारे अधिकारीगण कल से वहां पर गए हुए हैं और वो लगातार वहां का सर्वेक्षण कर रहे हैं। उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने भी एक दल वहां पर प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशन पर गया हुआ है। वह भी जल्दी प्रदेश अध्यक्ष जी को भी रिपोर्ट देगा और मैं आज की बैठक करने के बाद कल वहां जाऊंगा और मैं भी वहां जाकर देखूंगा कि किस प्रकार से हम बचाव के कार्य कर सकते हैं, किस प्रकार से शहर को बचा सकते हैं। Well, Times Now has visited the town and witnessed firsthand the situation on the ground. The residents are now demanding relocation and compensation for the damages to their property and land. Joshimath is sinking, and on daily basis the cracks are widening on the residences, hotels and roads of Joshimath. Times Now has reached Joshimath, and these are the scenes over here at the main market of Joshimath. You can see how these big cracks have developed on the main road which leads towards the Joshimath city. This is something which is very dangerous, and the residents of Joshimath have been protesting day and night, and they want evacuation and rehabilitation from the government. Rapid urbanization and exploitation of natural resources on a very volatile belt of Joshimath has led to this situation. Right now we are reporting from behind these two hotels over here. You can see that how both the hotels have been tilted towards each other, and as of now these two hotels have been evacuated by the district administration. अच्छा, क्या क्या समस्या हो रही है? पूरे देख रहे हैं हम जोशीमठ में दरारें पड़ रही हैं, होटल जो हैं उनमें दरारें पड़ रही हैं, घरों में दरारें पड़ रही हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है, कोई दो राय नहीं है। जो एनटीपीसी का पानी का रिसाव है उसी का ज्यादा असर पड़ रहा है। 1.5 महीने क्या, ये तो बहुत पहले से 1.5 महीने से आ रही है। 1.5 महीने से आ रही है। हाँ जी, लेकिन ये 2 तारीख की रात को फिर ज्यादा ही बढ़ गया। और ये होटल जो है हमारा पीछे दिख रहा है, ये पूरा टेढ़ा हो चुका है इसमें। हाँ जी, तो खाली करा चुके हैं होटल यहाँ पे सारे? पूरी खाली है। अच्छा, कल चीफ मिनिस्टर यहाँ पे आएंगे तो आप लोगों की जोशीमठ के जो लोग हैं उनकी क्या मांग होगी, क्या कहना चाहिए? हमारी मांग जी है, पहले हमारे वो पूरा भुगतान करें, ये जो डैमेज हो रहा है उसका पूरा भुगतान है। उसके बाद जिन्होंने This was a temple which has just collapsed few minutes ago over here. Given the fact that how various crafts have been developed in various houses in this complete belt of Joshimath, and we know for a fact that how this particular belt is very volatile. ये कब गिरा है अभी? ये अभी 2 घंटे पहले। 2 घंटे पहले। अच्छा, कितना पुराना मंदिर था ये? ये कम से कम 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए, अभी गिरा है। अच्छा, और कितने घर हैं यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं इस पूरे इलाके में जहाँ पे क्रैक है, जितने गिरों में? इसमें 4 घर हैं। हाँ, कितने? 6 परिवार हैं। 6 परिवार हैं जिस पे हम खड़े हैं। ये भी क्योंकि पूरा इस टाइम हिल चुका है, खड़े हैं, हमें पता लग रहा है कि एक तरफ ये झुका हुआ है। 6 परिवार रहते हैं सर इधर। 6 परिवार रहते हैं। अच्छा, कुछ छोटे बच्चे हैं, कोई परसोई के हो रहे हैं, कहाँ जाएंगे? स्कूल में रखा हुआ है यहाँ पे, तो स्कूल में ऐसे कोई व्यवस्था नहीं है।
कल चीफ मिनिस्टर यहाँ पे आएंगे, मुख्यमंत्री से आपकी क्या मांग है? आपदा प्रबंधन सेक्रेटरी, डीएम यहाँ पे मीटिंग ले चुके हैं, लेकिन अब तक ये नहीं हुआ है कि आपकी जमीनों का क्या होगा, आपके मकानों का क्या होगा। आपको स्कूल में रखा गया, ऑडिटोरियम आपको दिया गया है, कमरे दिए गए हैं, लेकिन आगे जाके क्या होगा, क्या मांग रखते हैं आप? सर हम चाहते कहीं अच्छी जमीन मिले, मकान बना के मिले। हमें पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमें बस जितने हमारे यहाँ पे कमरे हैं, मकान बने हैं, उतना ही चाहिए हमें। अच्छा, आप ये बताइए, कब से यहाँ पे दरारें आई हैं और पहले आप प्रशासन को आप लोगों ने बताया था तो क्या उनकी तरफ से कहा गया था? कुछ नहीं है सर, दरारें आते थे, हम बताते थे, एप्लीकेशन देते थे, वो आते थे, कभी आते थे, देखते थे, चले जाते, बोलते थे नॉर्मल है। परसों ही जब इतना सारा होने लगा, फिर आने लगे, फिर जाने लगे। I'll show you the scenes over here to give a sense to all our viewers that how volatile and dangerous the situation is here for all these people who are residing over here. Now this temple was standing over here 2 hours ago and now it has completely collapsed and huge cracks have been developed over here. In fact, 66 families from the temple town of Joshimath have also now migrated to other areas due to fear that the situation may only worsen. The government has formed a team of scientists to find out the reason for the cracks in the houses. Officials have also visited the spot to inspect the disaster-affected area. कल जोशीमठ में हम लोग आए हैं, मेरे साथ सचिव आपदा प्रबंधन और उसके साथ विशेषज्ञों की एक टीम भी आई है, जो हम लोग यहाँ जो स्थिति है उसका निरीक्षण और उसके साथ ही क्या तत्कालिक उपाय करने चाहिए उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। कल स्थल निरीक्षण भी किया, आज भी हम लोग स्थल निरीक्षण करेंगे कई क्षेत्रों का। जो भी आवश्यक कदम होंगे तात्कालिक रूप से वो राज्य सरकार उठाएगी, उसमें चाहे लोगों की जान सबसे पहले महत्वपूर्ण है, किसी प्रकार की कोई क्षति ना हो ये सुनिश्चित करने के लिए। नए क्रैक्स डेवलप हुए हैं, जो क्रैक्स पहले थे वो बड़े हो गए हैं। जो पानी निकल रहा है वो खतरनाक है, जो मड के साथ वो नीचे वैक्यूम क्रिएट कर रहा है, उसे करना और सिंकिंग हो रही है, वो बहुत ही चिंताजनक बात है। कहीं भी अगर पानी जमीन में मरेगा तो वो अपने साथ पूरा मिट्टी को घोल के ले जाता है और उसे करना और सिंकिंग होती है। तो इन चीज़ों को हमें ठीक करना है तत्काल। इनको जिनके घर क्षतिग्रस्त है बहुत ज़्यादा उनको हटाना, उनको रिलोकेट करना, जिनके घर में माइनर क्षति है उनको रिट्रोफिट करना, जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं और ठीक नहीं किया था उनके मलबे को हटाना। शहर में जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है उसके बायलॉज को बिल्कुल रेगुलेट करना पड़ेगा, उसको बायलॉज को हमको स्ट्रिंजेंट बनाना पड़ेगा, लाइट स्ट्रक्चर बने, गवर्नमेंट हेल्प करेगी उसमें लोगों को। With that, some big breaking news which is coming in. Well, Times now has spoken to the director of the Wadia Institute in Dehradun, who explains the reasons behind this crack which has developed in Joshimath. Listen in. अभी जोशीमठ में जो क्रैक्स डेवलप हो रहा है उसमें जो सब्सिडेंस हो रहा है ये एकदम नई बात नहीं है। तो अगर इस सिस्मिकली अगर इस बेल्ट को देखा जाएगा तो सिस्मिक जोन 5 में आता है, तो इसमें फ्रॉम सबसरफेस सम सॉर्ट ऑफ टेक्टोनिक मूवमेंट इस रीजन में तो है ही। तो वहां पर वो बिल्डिंग हो रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ होटल हो रहा है, रेस्टोरेंट हो रहा है, लोग वहीं पर रुक करके डिफरेंट जगह में जा रहा है। तो इसमें सरफेस से भी काफी लोड जोशीमठ जिस जगह में बिल्ड हुआ है उसके ऊपर आ रहा है। तीसरा चीज यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व किया है, जो यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है, स्वेज पैटर्न है, वो साइंटिफिकली ठीक से बनाया नहीं गया है। So those are the natural but also the man-made problems which may be leading to Joshimath to be sinking. In fact, what's this report which has been filed by our reporter Gaurav from one of the hotels which is now developing very deep cracks? ये तस्वीर आप देख रहे हैं, 2 होटलों के बीच की दीवार जोशीमठ में भूस्खलन के बाद कैसे एक होटल की दीवार झुक गई है पूरी तरीके से। और यहां पर आप देखें तो यहां पर अगर आप देखें तो टिल्ट होने के लिए जो मिस्त्रियों की तरफ से औजार इस्तेमाल किया जाता वो भी वहां लटका हुआ नजर आ रहा होगा। और ये होटल जो है लगातार, जो कि ये मलारी होटल है जोशीमठ का, दूसरे होटल की तरफ लगातार झुक रहा है। लेकिन इन्हीं 2 होटलों के बीच में से अगर आप देखें, इन्हीं दरारों के बीच में से एक रास्ता जो है वो जाता है जहां पर तकरीबन 10-15 परिवार रहते हैं। और मैं आपको तस्वीरों के जरिए अपने विजय गोपाल शर्मा जी के जरिए दिखाऊं तो देखिए लगातार ये जो दीवार है ये चिपक रही है आपस में, और यही वजह है ये जो सीढ़ियां हैं ये आपस में चिपक गई हैं। आप देखिए ये तस्वीर कितनी भयावह है, आपस में ये किस तरीके से दीवारें चिपक गई हैं और कभी भी इनके होटल के आपस में चिपक जाने का खतरा है। और टाइम्स नाउ भारत आपको जो ये तस्वीर दिखा रहा है, देखिए आप ध्यान से ये तस्वीरें, कितना बुरा हाल यहां पर हो रहा है।
और ये रास्ता इस तरीके से लोगों के आने जाने का रास्ता तो बंद ही हो रहा है, लेकिन लोगों के घरों के भी टूट जाने का खतरा पूरी तरह से बढ़ चुका है। और आगे हम आपको और तस्वीरें दिखाएंगे कि कैसे लोग अपनी जान हथेली पर रहकर अब अपने घरों में रह जरूर रहे हैं, लेकिन अब उन पर धीमे धीमे यहाँ से विस्थापित होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। Well, let me go across to an environmentalist joining us today on the show, Debi Goenka. Thank you so much for joining us. Debi Goenka, you must explain to us what can cause a town to simply sink in the way that Joshimath seems to be doing. Is it due to some of the environmental reasons and conditions in the place, or is a lot of this the cost of development? I think it's a combination of both things. One normally thinks that mountains and hills are very strong and very stable ecosystems. But in geological time, they're very recent kind of things, occurrences, and they're actually very fragile. Now, if you have a mountain ecosystem where deforestation has taken place, where there have been landslides in the past, and you decide to build on these kind of unstable ecosystems, you're really asking for trouble. And what has happened now is they've compounded the problem by actually planning more and more projects in this fragile area, which should never have been allowed in the first place. So if you dig tunnels under an area which has been prone to landslides, which has no tree cover, no vegetation to protect it, then you have water percolating inside, which again destabilizes the system. And then it is one thing triggering off another thing. So this is a kind of activity that should never have been planned. Thank you so much, Debi Goenka, for putting that into perspective. So the big question that an environmentalist is asking is essentially, how come these permits were also given by the Environment Board if it was already geologically and a very disturbed area, considering that it was a hilly terrain? Well, thank you so much, sir, for joining us with your insights. With that, a short break.